At Healing Hands, the doctors and experts aim to provide their patients with an experience that leads to healing in a calm and soothing ambience. It is India's only proctology clinic fully accredited with NABH and is the only government recognized clinic in India providing fellowship training in proctology. बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो रहते हैं दे वांट टू अवॉइड दिस टॉपिक कंसिडरिंग इट्स वेरी अनकंफर्टेबल और इट्स वेरी एम्बैरेसिंग टू टॉक अबाउट इट सो व्हाट इज अ जेंटल नज दैट यू वुड लाइक टू एनकरेज दोस पीपल टू सीक हेल्प इन ऑर्डर फॉर देयर सेंसिटिव कंडीशंस? आई थिंक ये बीमारी लोग डिस्कस नहीं करते हैं या फिर डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, उसका एक कारण ये है कि इस बीमारी के साथ लोगों को एक शर्म है, उनको ऐसे एक शाय फैक्टर डेवलप होगा कि अरे जिस फैमिली डॉक्टर ने मुझे बचपन से एग्जामिन किया है सर्दी खांसी के लिए एंड ऑल ऑफ इट, ना हाउ कैन आई गो एंड टॉक टू हिम अबाउट माई प्राइवेट पार्ट, अबाउट माई पाइल्स प्रॉब्लम. सो फॉर दैट व्हाट आई सजेस्ट इज़ वी हैव डेवलप्ड अ क्वेश्चनर. जब हमारे पास वेन एवर अ पेशेंट कम्स टू अस, यूजुअली दे कम विथ फैमिली. इन इंडिया इट्स वेरी टिपिकल, इफ हस्बैंड इज सफरिंग ही विल कम विथ वाइफ एंड समटाइम्स इफ the son is or daughter is, they are suffering from this disease, they will also come with the parents. So in this questionnaire what we ask them simple question that do you have to spend more time in the washroom, have you ever noticed blood in the stool. So when they fill this questionnaire and when the reply is available with us, we gently ask them that now since you are spending more time in the washroom, you have history of bleeding once or twice in a month, there is a possibility ki that you might have piles. और ऐसा करके हम उनको फिर मोटिवेट करते हैं कि आप एक बार एग्जामिनेशन करके ले लीजिए. प्रोक्टोस्कोपी नाम की एक टेस्ट होती है जिसकी वजह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड दिस आर द थिंग्स अवेयरनेस ट्रिक्स विच वी यूज़ टू फॉर अर्ली डायग्नोसिस विच कैन एक्चुअली हेल्प देम फ्रॉम वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेमरॉइड्स और पाइल्स. एंड लास्टली द स्लोगन इज़ अगर आप अर्ली स्टेज में ये बीमारी का डायग्नोसिस कर लेते हो तो आपको सर्जरी नहीं लगेगी. तो इसके लिए हमने एक कैंपेन रन किया था, इसको बोल रहे थे हम से नो टू सर्जरीज. सो से नो टू सर्जरी, इसमें हमने पेशेंट्स लोगों के लिए अवेयरनेस एक्टिविटीज़ की थी जिसमें हम पेशेंट्स को हम एक्चुअली अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि आपको अगर थोड़ा सा भी बर्निंग, प्रिकिंग, ब्लीडिंग है स्टूल के साथ तो आप एट द अर्लीस्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाइए ताकि दवाई से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पूरी तरह से ठीक हो जाए. Coming to the very last questions, we started with asking कि with मतलब जो individuals रहते हैं they become the butt of jokes, जो piles के patients हैं. So can you tell us one real life incident of a patient with whom you feel कि piles को एक advice लेना is very important at the very right time? Yeah, so I remember a case. I treated a software professional. She was 25 when she came to me, I guess 3 years back. And that time she was having grade 3 bleeding hemorrhoids and her hemoglobin actually dropped from 14 to 10, and that was the time when I told her that your hemoglobin has dropped, you have a grade 3 disease, it can't be cured with medications or any form of Ayurvedic or homeopathic or allopathic treatment, and it's better that you undergo a laser surgery so that we can fix the problem permanently and you will be comfortable in your future life. I also told her that there is a great chance that this problem might get aggravated during pregnancy, but obviously हर एक को सर्जरी का फियर होता है और ये फियर उसको भी था. सो समहाउ उसने ये एडवाइस को सीरियसली नहीं लिया और उसने बोला कि ठीक है डॉक्टर, मुझे बहुत डर है सर्जरी का, अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ दवाई लेना चाहती हूँ. देन ऑल्सो एज we stand for, we usually promote holistic treatment. We told her okay, you can take medications and follow lifestyle modifications. Then she came to me just in the last week, and when she came to me she was pregnant. It was her 5th month of pregnancy and the gynecologist referred her to me, and this time her hemoglobin dropped to 7. Now imagine a situation, you are pregnant, 5th month है प्रेगनेंसी का, आपका हीमोग्लोबिन 7 हो गया है. इट कैन डेफिनेटली एडवर्सली अफेक्ट द मदर्स हेल्थ एज वेल एज द बेबीज़ हेल्थ. और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा मेडिकेशंस हम दे नहीं सकते हैं. सो आई स्पोक टू द गायनेकोलॉजिस्ट, आई टोल्ड देम अबाउट माई टेक्निक ऑफ लेजर हेमरोडोपेक्सी एंड आई टोल्ड दैट वी कैन परफॉर्म द सर्जरी अंडर लोकल एनेस्थेशिया बिकॉज एनेस्थेशिया इटसेल्फ इज़ अ रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो जो एनेस्थेशिया डेंटिस्ट लोग देते हैं लोकल एनेस्थेशिया बोलते हैं उसको,
तो मैंने उसको लोकल एनेस्थेशिया देके लेज़र ट्रीटमेंट करके वो पाइल्स ठीक कर दिए, बिकॉज it was a very challenging case, and eventually now her bleeding has stopped and she is doing good. So I think that is, and there are many such stories कि लोग डर के इस बीमारी से भागते हैं और फिर वो इवेंचुअली हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं. सो दिस इज़ वन वेरी क्लासिकल एग्जांपल कि इस बीमारी से दूर नहीं भागना चाहिए, टाइम पे इसका ट्रीटमेंट करो तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे. And finally, for all the viewers who may be suffering in silence, what is your but most piece of advice for piles and seeking help? I think don't suffer in silence. It's a common disease, and if you have any symptoms which are suggestive of piles, fissure, or anything in the bottom area, you need to consult the proctologist on top priority. There are two ways of looking at it. One is, जब ब्लीडिंग होता है स्टूल के साथ, सो ऑब्वियसली 90% और मोर देन दैट ये पाइल्स की वजह से ही होता है, लेकिन कभी कभी ये कोलॉन में से भी हो सकता है. आपको कोलोनिक पॉलिप हो सकता है या कोलॉन कैंसर भी हो सकता है, उसके वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है. तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो सकता है तो इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है. लेकिन अगर आप इसको पाइल्स समझ के डिले कर रहे हैं और अगर सपोज़ ये कोलॉन कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो इवेंचुअली आप काफ़ी लेट स्टेज में डॉक्टर के पास जाओगे और तब तक वो बीमारी काफ़ी स्प्रेड हो चुकी रहती है. और इन टुडेज़ वर्ल्ड व्हेन यू हैव एक्सेस to almost everything, when you have modern treatment options available, I think one should not shy of piles or any bottom diseases, and one should seek the consultation on topmost priority. Well, thank you so much, Dr. Porwal, for your valuable time and for sharing insights with our viewers. I'm pretty sure it's going to help a lot of audience, and thank you so much. Thank you, Shreya, and Pune Mirror team for creating awareness on this very important topic, which is piles. Thank you so much.